دعا یہ کیا کر رہی ہو؟ شرمین نے اندر آتے دعا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو گولڈ سیٹ گلے سے لگائے خود کو آئینے میں مختلف زاویے سے دکھ رہی تھی۔ شرمین کی آواز پر وہ بری طرح سے سٹ پٹائی۔ وہ بھابھی ایسے ہی دکھ رہی تھی۔ شرمین نے سنجیدگی سے گولڈ کا سیٹ واپس باکس میں رکھتے اسے لاکر میں رکھا۔ یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں خاص موقعوں کے لیے، اور یہ امی نے المیر کی دلہن کے لیے رکھا ہے تو اس کی دلہن فضا ہے۔ شرمین نے اسے دبے لفظوں میں جتایا، جی جانتی ہوں۔ دعا کا لہجہ ذرا سا نم ہو تو جاؤ، ماموں چائے کا کہہ رہے ہیں وہ بنا کر لے کر جاؤ۔ شرمین نے اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا تو چپ کر کے باہر نکل گئی، جبکہ شرمین گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ امی، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس کنگلے سے شادی کروں؟ پتہ نہیں آپ والدین کیوں بچپن سے رشتے طے کر دیتے ہیں۔ بے شک بڑے ہو کر ان کے دل ملے یا نہ ملے، مزاج بھی تو دیکھے نا۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ فریدہ بیگم غصے سے بولی، جبکہ دعا آپے سے باہر ہونے لگی۔ بس مجھے نہیں کرنی اس شخص سے شادی، منع کر دے آپ۔ فضا وہیں کچن کی دہلیز سے شرمین کے ساتھ کھڑی دعا کی گوہر فشانی سن رہی تھی، لیکن دونوں ہی خاموش کھڑی تھی۔ اچھا، اگر المیر سے نہیں کرنی شادی تو کس سے کرنی ہے؟ فریدہ بیگم نے اس کے انداز و توار دیکھتے بہت کچھ وہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، پلیز انہیں کہہ دیں، کیوں کہیں اور رشتہ دیکھ لے اپنے بیٹے کا۔ دعا نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ شرمین نے فریدہ بیگم کی جانب پریشانی سے دیکھا، وہ کیسے اس کے سامنے بھائی کو کنگلا کہہ رہی تھی اور شادی سے انکار کر رہی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہے اس کی بہن اسے گھر میں بیاہ کر آئی ہے۔ دعا اپنی کہتی ہوئی جا چکی تھی۔ فریدہ بیگم کرسی پہ ڈھے سی گئی۔ ممانی جان، امی بہت دکھی ہوں گی۔ شرمین کی فکر مندی اس کے چہرے پر حوادیدہ تھی۔ شرمین، اس لڑکی نے تو اس بڑھاپے میں ہمیں رولنے کی قسم کھائی ہے۔ کل نکاح ہے یہ، اور یہ مجھے رہ رہ کے اس وقت کا شدید دکھ ہو رہا ہے جب اسے یونیورسٹی پڑھنے کو بھیجا تھا۔ کیا پڑھ لکھ کر بچے ماں باپ کے فیصلے کے ایسے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ممانیاں فکر نہ کریں، سب بہتر ہوگا۔ شرمین خود پریشان تھی، لیکن اپنی ساس فریدہ بیگم کو حوصلہ دیتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قیوم صاحب کے 3 بچے تھے اور ان کے ہاں شروع سے ہی رواج تھا، بچپن میں ہی رشتہ طے کر دیا جاتا تھا۔ قیوم صاحب کے بڑا بیٹا ولید قیوم بینک میں ملازم تھا اور ایک اعلیٰ عہدے پر آفیسر تھا۔ دوسرے نمبر پر دعا تھی جس نے ایم اے اکنامکس کیا تھا اور فضا بی اے کے بعد آگے پرائیویٹ بھی پڑھ رہی تھی۔ بڑے بیٹے ولید قیوم جس کی شادی 1 سال پہلے اپنی بیوہ بہن کی بیٹی شرمین سے کر دی گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ کپل تھے، جبکہ دعا کا رشتہ بھی بچپن سے ہی شرمین کے بھائی المیر سے کر دیا گیا تھا۔ اب کل کا نکاح کا دن تھا اور ایک دن پہلے دعا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ بات ابھی قیوم صاحب اور ولید تک نہیں پہنچی تھی۔ فریدہ بیگم انتہائی پریشان تھی۔ آپ اس طرح انکار مت کریں، امی بہت پریشان ہو گئی ہیں۔ فضا نے دعا کے پاس آتے سمجھاتے ہوئے کہا، تم چپ رہو، میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے تمہیں۔ وہ جو موبائل کے ساتھ لگی تھی فضا کی بات پر اسے جھڑک دیا۔ وہ رونی صورت بنا گئی۔ دعا، فضا ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہارے ایک عمل سے سب کتنا دکھی ہوں گے۔ شرمین نے بھی اسے سمجھانا چاہا، اگر آپ دونوں کو سب کے دکھ کی اس قدر فکر ہے تو یہ دکھ مل کر بانٹ لینا۔ دعا کی بات پر وہ دونوں چونکی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آپ اپنے اس بھائی کا نکاح فضا سے کر لیں، آپ کے گھر والے بھی خوش اور ادھر یہ بھی۔ دعا نے جتنی آسانی سے یہ سب کہا تھا، کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ شرمین سوچ میں پڑ گئی۔ ایک نظر فضا کا من موہنا چہرہ دیکھا، وہ ضرورت سے زیادہ معصوم سی، اور دور کی چالاکیوں کو سمجھنا اس معصوم کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے شرمین بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اس کا بھائی بھی سی ایس کر رہا تھا اور جلدی وہ مکمل ہو جانا تھا اور ایک اچھے عہدے پر وہ فائز ہوتا۔ ہاں، انہوں نے مشکل دیکھتے ہوئے، حالات دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد بہت ٹف ٹائم ملا تھا انہیں، لیکن انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ عابدہ بیگم نے کپڑے سلائی کر کے دونوں بچوں کو پالا۔ قیوم بھائی نے ہمیشہ بھائی ہونے کا فرض ادا کیا، لیکن بہن سمیت بچے بھی خوددار تھے، کبھی اپنے ماموں کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلائے، جبکہ چھوٹے ماموں زبیر صاحب کافی زیادہ امیر تھے۔ وجہ ان کی امیر بیوی تھی، وہ بس بیوی کے غلام تھے، جو وہ کہتی تھی وہی کرتے تھے۔ بہن بھائی تقریباً دونوں ہی بہت کم میل ملاپ رکھا کرتے تھے۔ ان کی بھی 2 اولادیں تھیں، دونوں بیٹیاں تھیں، ندا اور ردا۔ ان دونوں کا نخرہ بھی 7ویں آسمان پر تھا۔ شرمین گہری سوچ میں تھی جب ولید کمرے میں آیا۔ شرمین، ولید اسے پکارتا وہیں بیٹھا اپنے شوز اتارنے لگا، لیکن شرمین کا دھیان ہی نہ تھا۔ شرمین،
वलीद की आवाज ऊंची हुई तो शर्मीन ने चौंक कर पीछे देखा। वलीद, आप कब आए? वो फौरन उठी। तुम कहाँ गुम हो आज? मेरे पुकारने पर भी तुमने जवाब ना दिया। अपनी घड़ी उतार कर उसे थमाता वो अब शर्ट की कफलिंग्स खोल रहा था। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। शर्मीन फौरन फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल ले आई थी। पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए शर्मीन का परेशान चेहरा देखने लगा। क्या हुआ? कोई बात परेशान कर रही है क्या? तो बताओ मुझे। वो ग्लास वापस उसे थमाते हुए पूछने लगा। नहीं, कुछ खास नहीं, आप चेंज करके फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। शर्मीन उठने लगी कि वलीद ने उसका हाथ थामे वापस बैठाया। बताओ क्या हुआ? शर्मीन वलीद के पूछने पर गहरा सांस भर के रह गई थी और फिर जो दिन को हुआ वो सारी बात बता दी। वलीद को इंतहाई गुस्सा आया, लेकिन जब्त कर गया। दुआ की इतनी जुर्रत कि कल वो इनकार कर सके। देखता हूं मैं कैसे मना करती है। वलीद को तेज में आता देख शर्मीन बौखला गई। प्लीज वलीद, गुस्सा मत कर। अगर ममान ने इतनी टेंशन ले ली आ गई, मामले को आराम से हल करे। शर्मीन की बात पे वलीद ने सर नफी में हिलाया। ये मामला बहुत पेचीदा है, इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। वलीद ने उठता हुआ वो बाहर निकला। उसका रुख अपनी वालदा के कमरे की जानिब था, जहां पहले से ही अदालत लगी थी। दुआ बाप के कदमों में बैठी थी। प्लीज बाबा, ये एक बार आप वाजिद से मिल लें, बहुत अच्छा है। दुआ उनसे फरियाद कर रही थी, जबकि दरवाजे पर इसेदा वलीद ये अल्फाज सुनता वहीं जम गया। कयूम साहब का सर झुका हुआ था। उनकी बड़ी बेटी ने आज उनका सर झुका दिया था। फरीदा, इससे को यहाँ से चली जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, उन्होंने अपनी बीवी से कहा। कभी दरवाजे पर शर्मीन भी आन खड़ी हुई। बाबा, ऐसा मत कहे, मैं मर जाऊंगी। मुझसे मुझे मुझे मुनाफकत नहीं होती मुझसे। बाबा, मुझसे मुनाफकत नहीं होती। वो रोई जा रही थी। बस कर दो दुआ, और कितना सताना है अम्मा बाप को। हम तो औलाद पैदा करके ही हमने शायद जुर्म कर दिया है। फरीदा बेगम गुस्से से बोली तो लहजा रोंदा हुआ था। अम्मी, आप तो समझे, आप जानती हैं मैं अलमीर को पसंद नहीं करती, तो इससे निकाह कैसे कर लूं? दुआ से छुई थी। तुमने निकाह को मजाक समझा है क्या? वलीद तेज में आता अंदर की जानी पड़ा और दुआ को गुस्से से झिंझोड़ते हुए उठाया। क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, बोलो। माँ बाप को किस चीज पर उकसा रही हो? जानती हो ना कल निकाह है, और आज ये ड्रामे। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। छोड़े मुझे, आपका कोई हक नहीं है मुझसे पर इस तरह चलना है। दुआ ने गुस्से से तरकते अपने आप को वलीद से छुड़वाया। आपने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं अपनी कर सकते। मैं वाजिद को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से। चिटा वलीद का हाथ उठा था और सभी सख्ते में आ गए थे। दुआ का बेशर्मी से अपने मुंह पर से अपनी मोहब्बत का इस तरह बरमला इजहार करना वलीद को तेज दिला गया था। करवाता हूं मैं तुम्हारा निकाह वाजिद से। उसे गुस्से से बाजू से थामे कमरे से निकलने लगा। रुको वलीद, कयूम साहब ने उसे पुकारा तो उसके जाते कदम थमे। छोड़ दो दुआ को। उनकी बात पर उसने शिकवा के ना अंदाज में बाप को देखा। उन्होंने इशारा किया कि उसे छोड़ दे और खुद फरीदा बेगम की जाने मुड़े। इस बदसात से कहो कि इस लड़के को बोले रिश्ता लेकर है। मैं अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कयूम साहब खुद पर जब्त करते हुए बोले तो वलीद उन्हें हैरत से देखे गया। बाबा, कल निकाह है, मेहमानों ने इकट्ठा होना है और आप। मामू ठीक कह रहे हैं वलीद। शर्मीन अंदर आते वलीद के जवाब में बोली। दुआ ने घूड़ी डालते उसे देखा। अलमीर का निकाह दुआ से नहीं, फिजा से होगा। शर्मीन की बात पर सबने हैरत से देखा। मामू जान, मुझे अमीर के लिए फिजा का रिश्ता चाहिए, जो मेरे भाई को डिजर्व करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे नाराज नहीं करेंगे। शर्मीन की बात पर कयूम साहब की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने शर्मीन के सर पर हाथ फेरा। दूर दुबक कर खड़ी फिजा को अपने पास बुलाया। वो आंसू पूछते अपने बाप के पास आकर बैठी। क्या मेरी बच्ची अपने बाप के लिए निकाह करेगी? बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस आप रोए नहीं। आपकी आंखों में आंसू नहीं मुझे देखे जाते। वो कयूम साहब का आंसू से तर चेहरा साफ करते मासूमियत से बोली। कयूम साहब के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फरीदा बेगम ने भी आंसू पूछे गहरा सांस खारिज किया। बस, तो फिर तय हुआ, कल अलमीर और फिजा का निकाह होगा। वह भी बनी। शर्मीन ने मुस्कुराते हुए फिजा को गले से लगाया और पलट कर शौहर के पास आई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसका बाजू पकड़कर दबाया ताकि वो अपना गुस्सा छोड़ दे। दुआ इन सबको एक तरफ मुतमईन देकर वहां से खामोशी से वॉकआउट करके, मेरे अलमीर को फिजा डिजर्व करती है। इस जैसे बोंगे को फिजा जैसी बोंगी लड़की डिजर्व करती है। वो अपना गुस्सा इश्ताल कम करने के लिए पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। फिर कुछ सोचते हुए वाजिद को कॉल मिला। वो भी दोस्तों के साथ आवारा करते घर लौटा था।
اور दुआ की आती कॉल देकर उसके माथे पर बल पड़े। अबे यार, एक तो ये जान का अजाब बन गई है, ना हाथ आती है ना जान छोड़ती है। कॉल कट करता वो अंदर दाखिल होते उसे मैसेज करने लगा। अभी बिजी हूँ बहुत, फ्रेंड्स आए हैं, उनके सामने बात नहीं कर सकता, हो जाए तो करता। मैसेज टाइप करते वो मोबाइल वापस पॉकेट में डालता अंदर आ गया। जैसे वो अंदर आया एक उड़ता हुआ जूता उसकी जाने पाया, सो बर वक्त कैच कर गया। या अल्लाह खैर, क्या हो गया अम्मा, इतना गुस्सा, जा दफा हो जाए यहाँ से, जहाँ से आया है मनहूस। वो मुंह फेरते हुए बोली, ऐसे तो ना कहें, आप तो मेरी जान है, आपके बिना आपका वाजिद कुछ भी नहीं। वो माँ का हाथ चूमता हुआ बोला, हाँ, तभी सारा दिन आवारागर्दी करता है, तब माँ की याद नहीं आती तुझे? वो अफसर्दगी से बोली, बस माँ, दुआ करें जल्दी से मेरा माल मुझे मिल जाए, फिर हमारे दिन भी फिर जाएंगे। वो धीरे से मन मनाए, कुछ बोला तूने? अम्मा ऊंचा सुनती थी, उन्हें समझ ना आई वाजिद ने क्या बोला। कुछ नहीं अम्मा, भूख लगी है, खाने को कुछ है? वो हाथ चाटता उठकर किचन की जानिब रुक गया। हाँ, दाल बनी थी, कल की वही खाई है, तेरे लिए रखी है बचा के, खा ले, चावल भी पड़े हैं। उन्होंने नमाज की नीयत बांधते हुए कहा, जबकि दाल पे वाजिद का मुंह बना था। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? फोन पर अलमीर को सारी बात बताते अब उसकी राय ले रही थी, जो बिल्कुल ही चुप हो गया था। मीर दोबारा पुकारा, आप ही, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कल निकाह है और आज। मीर सुलगने लगा था। मीर, मुझे नहीं लगता कि दुआ तुम्हारे लायक है। जिस तरह की आज उसने बातें की मैंने सुनी है ना, अगर तुम सुन लेते तो उसी वक्त ना करते। अच्छा हुआ कि वक्त रहते उसकी असलियत हमारे सामने आ गई। और तुम जानते तो हो, फिजा शुरू से ही कितनी प्यारी और सुघड़ और मासूम है, लेकिन बचपन के रिश्ते की वजह से मैं चुप हो गई थी। अब अगर अल्लाह ने तुम्हारी फिजा के साथ जोड़ दिया है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से अपने लिए बेहतरीन इनाम समझो। शर्मीन ने उसे समझाती हुई तफसील से कहा, लेकिन अम्मी के बारे में सोचा है आपने? जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? क्या वो राजी होंगी? मीर को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनी वहां अजीज थी, और उसके बाद अपनी बहन। तुम मम्मी की फिक्र नहीं करो, एक बार निकाह हो जाए तो मैंने समझा लूंगी। बस तुम अपना माइंड थोड़ा सा सेट कर लो, इसलिए इतनी रात को तुम्हें फोन किया है। मैं क्या सेट करूं आप ही, रातों रात यहाँ फैसले बदल रहे हैं, इंसानों के जज्बात की कोई कदर ही नहीं है। शर्मीन को अलमीर बहुत ज्यादा अपसेट महसूस हुआ। अलमीर, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्यों तुम एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसके दिल में ऑलरेडी ही पहले कोई और मौजूद है? क्या एक ऐसी लड़की को तुम कबूल कर लोगे? सिर्फ मुझे ये बता दो। शर्मीन की बात पर अलमीर एकदम खामोश हो गया। जानती हूँ मीर, ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए यही फैसला हम सबके लिए बेहतरीन साबित होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह फिजा फिजा तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगी। मीर को खुदा हाफिज कहते वो कॉल कट कर गई, और उस वक्त वलीद कमरे में दाखिल हुआ, जिसके साथ अब अब ढीले पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे पर अभी भी परेशानी दिखाई दे रही थी। आपने खाना नहीं खाया? आपके खाने के लिए मैं लाऊं? वो पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, रहने दो। वो सर दबाता एक तरफ हो बैठा। वलीद, खाना ना खाना तो कोई हल नहीं है ना, जो होना है वो होकर रहेगा। कल तक आप इस तरह टेंशन में रहेंगे, अपनी तबीयत खराब करेंगे। आपको मामू जान के साथ अब खड़ा होना है, और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखे। मैं खाना लगाती हूँ। शर्मीन उसको हौसला देती हुई थी कि वलीद ने उसका हाथ पकड़ कर वापस बिठा लिया। तुम इतनी टफ सिचुएशन में भी इतनी नॉर्मल कैसे रह लेती हो? मतलब तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही? हालांकि जानती हो कि वलीद जरूरत से ज्यादा परेशान हो रही। अल्लाह पर छोड़ दे, जो होगा बेहतर होगा। परेशान ना हो, मैं हूं आपके साथ। शर्मीन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मोहब्बत से कहा। तो वलीद ने मुस्कुराते हुए अस्वात में सर हिलाया। कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सुबह के 9 बज रहे थे और दुआ मुसलसल वाजिद को कॉल कर रही थी, जो कि इग्नोर कर रहा था। और बस ने कॉल उठाई तो दुआ भड़की। क्या यार, मेरे 100 काम होते हैं, अब बात के पीछे ना लग जाए करो। क्या मसला है, क्या कहना चाहती हूँ? वाजिद ने उकताए हुए कहा। देखो वाजिद, तुम्हारी खातिर मैंने अपने स्टैंड ले लिए हैं, और तुम इस तरह से बात कर रहे हो। दुआ की बात पर वो एकदम चौंका। क्या मतलब, कैसा स्टैंड लिया? वो हैरान हुआ तो दुआ ने से अपने कल घर में सारी बात उसे बता दी। वाजिद अपना सर पकड़ कर बैठ गई। तुमने इनकार, निकाह से इनकार कर दिया? तो मैं इतनी देर से तुम्हें कौन सी कहानी सुना रही हूँ? कह तो दिया है कि कर दिया इनकार। अब तुम जल्दी से अपनी अम्मी को लेकर आओ, हमारे रिश्ते के लिए। दुआ ने से सारी बात बताते हुए कहा। इतनी जल्दी? होश में तो, अभी तो मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ, रिश्ता कैसे ले आऊं? मेरी अम्मी कभी नहीं मानेगी।
और ये तुम क्या कह रहे हो वाजिद? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ तो मोहब्बत से पेट थोड़ी ना भरता है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं। तुम तो जानती हो मैं कुछ नहीं जानती। तुम कल अपनी अम्मी के साथ आ रहे हो रिश्ता लेकर, और शादी तब हम करेंगे जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक है? दुआ ने प्लानिंग की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना कि मैं रिश्ता लेकर आऊंगा, समझी तुम? और दोबारा मुझे कॉल मत करना। वाजिद ने उसे साफ खड़ी खड़ी सुनाते कॉल बंद की। ऐसी फजूल मेरे पीछे पड़ गई है। उसको लगता है कि मैं इससे मोहब्बत करके इससे निकाह करने के लिए ले आऊंगा। मेरे लिए जस्ट एक टाइम पास लड़की है ये। शादी तो मैं किसी बहुत अमीर लड़की से करूंगा, इससे तो कभी नहीं। वाजिद अपने दिमाग में दुआ को बातें जबकि दुआ अपना मोबाइल देखती ही रह गई थी। जिस इंसान के लिए उसने घर वालों के सामने स्टैंड लिया, उस शख्स ने कितनी आसानी से उसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में बेशुमार आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपना दुख अब किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। एक झूठी और राह चलती मोहब्बत की खातिर उसने अपनों को दुख दिया था और अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल मुतमईन था। अलमीर हसन वल्द मोहम्मद हसन, आपका निकाह फिजा कयूम वल्द कयूम अहमद के साथ बाहक और उसके 1 लाख रुपया तय पाया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज सुरैया बेगम ने हैरत से वहां मौजूद सब लोगों को देखा। 1 मिनट मौलवी साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। लड़की का नाम फिजा नहीं, दुआ है। सुरैया बेगम ने मौलवी साहब के लफ्जों की तस्दीक की। फरीदा बेगम और कयूम साहब की नजरें भी शर्मीन पर उठी। शर्मीन आगे बढ़कर अपनी माँ के पास उनके कान के करीब गई। अम्मी जी, निकाह फिजा से हो रहा है, दुआ से नहीं। लीजिए निकाह होने दें, इसके बाद मैं आपको सारी बात बता दूंगी। शर्मीन ने आजी से कहा, जबकि सुरैया बेगम के चेहरे पर तरख्तगी ने ले ली थी। फौरन अपनी जगह से उठी। कि क्या मजाक है? हम दुआ और अलमीर के निकाह के लिए आए हैं, अचानक से दुआ की जगह फिजा क्यों? वो गुस्से से भड़की। अम्मी, अब एक बार ये निकाह तो हो लेने देना। वो बेबसी से बोली। शर्मीन, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्या तरीका है? मैं यहाँ अपने बेटे के बचपन की मंगेतर के साथ उसके निकाह में की हामी पड़ी है, और ये निकाह फिजा से नहीं दुआ से होगा। भाई साहब, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? सुरैया बेगम अब अपने भाई की जानिब हो गई थी। अम्मी, मामू की कोई गलती नहीं है। दुआ ये निकाह नहीं करना चाहती, वो किसी और को पसंद करती है, इसलिए मामू जान ने फिजा और अलमीर के निकाह के लिए। क्या कह रही हो ये तो? ऐसे कैसे सब कुछ हो गया? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? अब की बार वो शर्मीन की तरफ देखती गुस्से से बोली थी। अम्मी, मैं आपको निकाह के बाद सब कुछ बता दूंगी, प्लीज इस वक्त निकाह तो हो लेने दे। हरगिज नहीं, मैं ये निकाह नहीं होने दे सकती, क्योंकि आप एक ऐसी लड़की से शादी करेंगी जो आपके बेटे से शादी ही नहीं करना चाहती, जबरदस्ती करेंगी। अब आपके साथ। शर्मीन की आवाज में थोड़ी सी तेजी आ गई थी। अलमीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे का निकाह एक ऐसी लड़की से कर दूं जो माँ बाप के दबाव में आकर मेरे बेटे से शादी कर रही है? तुम्हें क्या लगता है अगर दुआ के ऊपर उसके माँ बाप दबाव नहीं डाल सकते तो फिजा के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? ये मुनाफकत नहीं? मैं इस लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। जैसे बड़ी बहन वैसे छोटी बहन। अलमीर, चलो मेरे साथ, ये निकाह नहीं होगा। सुरैया बेगम ने सख्त अल्फाज में कहते अपने कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। निकाह के लिए अब आए हैं और आप ऐसे चले जाएंगे वापस? ये सब नहीं है सही। शर्मीन की आंखों में आंसू आ गए। शर्मीन, मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम अलमीर की जिंदगी का फैसला कर सको। माना कि तुम उसकी बहन हो, लेकिन मैं माँ हूँ। अलमीर या मुतल्लिक और उसकी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार मुझे है। तुम बहन रहो, माँ मत बनो उसकी। अम्मी मेरी बात तो सुने, आप ही जो कह रही हैं। अलमीर के बोलने पर सुरैया बेगम ने कहर की नजर उस पर डाली। अलमीर, अगर तुम्हें ये निकाह करना है तो तुम कर लो। अपनी आप ही की बात सुन लो, मैं जा रही हूँ। अपनी माँ के बगैर तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इस निकाह में शामिल नहीं होंगी, जैसे तुम दोनों की मर्जी। वो जो गुस्से से कहती बाहर बाई की जानी पड़ गई। अलमीर ने बेबसी से कयूम साहब की तरफ देखा। और मुझे, मैं ये निकाह लाजमी करूंगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। नहीं अलमीर, मेरी बहन की मर्जी निकाह में शामिल नहीं, और मैं अपनी बहन को नाराज नहीं कर सकता। जब मेरी बहन राजी नहीं तो फिर ये निकाह नहीं होगा। जाओ अपनी माँ के साथ। कयूम साहब ने अलमीर का कंधा थपका और से बाहर जाने को बोला। अलमीर ने एक नजर शर्मीन की जाने देखा, जिसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, पर खामोशी से बाहर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। वही फिजा का दिल एक लम्हे को साकित हुआ। सभी एक दूसरे को जोड़ निगाहों से देख रहे थे। इस वक्त कयूम हाउस में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सारी गलती शर्मीन तुम्हारी है,
तुम्हें पप्पू को सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। वलीद गुस्से से भड़का, जबकि शर्मीन के आंसू बहते जा रहे थे। वलीद, खुद पर काबू रखो। शर्मीन ने सबका भला ही सोचा था। जो हो गया बात को यही खत्म करो। कयूम साहब ने मामले को ठंडा करना चाहा। मामू जान, मेरी नीयत गलत नहीं थी। अम्मी की सख्त तबीयत से आप वाकिफ तो हैं, लेकिन मैंने यही सोचा, पर उन्होंने तो मेरी एक नहीं सुनी। शर्मीन का दुख कम ही नहीं हो रहा था, जबकि दुआ उसे आंसू बहाता देख सर नफी में झटकती फिजा के कमरे की जानी पड़ी, जो आज दुल्हन के लिबास में बैठी बिना निकाह के रह गई थी। कमरे में आई तो सब कुछ तहस नहस हुआ था। फिजा ने अपना सारा जेवर उतार कर दूर फेंका था। हाँ, ये वही जेवर था जो आज शर्मीन ने उसके हाथ से वापस ले लिया था, और वही जेवर इस वक्त जमीन से गिरा अपनी नाकदरी से रो रहा था। छी छी, बहुत अफसोस हुआ। दुल्हन बनकर तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ ना। दुआ ने उसके पास आकर तंजन कहा। फिजा ने उसे सख्त गोरी से नवाजा। अरे, इसे क्या देख रही हो? शुक्र करो बच गई। जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया उसे तुम्हारे पल्ले बांध रहे थे। भाई, तुम्हारी भी तो कोई अपनी मर्जी है ना, ऐसे ही तुम्हारा निकाह करने लगे। अब की बार दुआ ने उसे प्यार से कहा तो फिजा पैनिक हुई। दूर रहो मुझसे, नफरत है मुझे तुमसे। हमेशा मेरी खुशियों को खा गई तुम, और आज भी तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। तुम बहुत बुरी हो दुआ, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी नहीं। फिजा गुस्से से बोलती हुई अब कमरे में उसे धक्का देती बाहर निकाल चुकी थी। एक शौक किसी कैफियत में थी इस वक्त। वह उसकी छोटी बहन ने उसे हमेशा आप कहकर मुखातिब किया, आज वो तुम कह रही थी। और क्या कुछ नहीं बोला था दुआ को। उसका अंदाज उसे समझ ना आया। घर आते ही सुरैया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, और अलमीर उन्हें कब से मना रहा था। तुम दोनों बहन भाई मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। उन्होंने शिकवा किया। नहीं अम्मी, आपको धोखा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस वहां हालात ही ऐसे हो गए कि आप ही की बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। वो बेबसी से बोला, ऑप्शन है अलमीर? उसकी तरफ देखते मजबूत लहजे में बोली। अलमीर ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। तुम्हारे बचपन की मंगेतर है, मतलब सिर्फ तुम्हारी है वो। उससे पहला हक भी तुम्हारा है। वो कुछ भी कहे मुझे यकीन नहीं, मेरी बहू सिर्फ दुआ ही बनेगी। अब ये तुम पर है कि तुम उसे कैसे मेरी बहू बना दे। इम्तिहान है तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी गैरत का। सुरैया बेगम उसे किसी बात के लिए उकसा रही थी, वो समझ रहा था, लेकिन क्या वो एक ऐसी लड़की को अपना सकता था जो किसी और से। मीर, सोचो मत, अगर वो किसी और से मोहब्बत करती भी है तो निकाह के बाद सब भूल जाएगी। राह चलते कोई भी अच्छा लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे दीवाना वार मोहब्बत करने लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, समझे तुम? सुरैया बेगम उसे आईना दिखाती उठ गई। और हाँ बेटा, अपने दिल पर हाथ रख के इस दिल से पूछो कि वो किसे चाहता है, दुआ या फिजा। जब फैसला कर लो उसके बाद अब बात होगी। वो सख्ती से अपनी शाल झटकती अपने कमरे की जाने पड़ गई, और उन्होंने मुतमईन होते गहरा सांस खारिज किया। अपना मोबाइल उठाते शर्मीन को एक मैसेज किया और वापस रख दिया। आंखें मूंदे बैकग्राउंड के साथ टेक लगाया। शर्मीन ने अपनी माँ का मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। अपने आंसू गाल से पूछते हुए मैसेज डिलीट करके उठी थी। अब उसका रुख बाथरूम की तरफ था। शुक्राने के नफल भी तो अदा करने थे। वलीद रूम में आए तो जानमाज पे बैठी और अल्लाह के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे और आंखें मीची हुई थी। आज पहली बार उसने शर्मीन पर गुस्सा किया था। उसे खुद भी बुरा लगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे सख्त नाराज हुआ था। बिस्तर की जानिब बढ़ते उसने अपना माथा सहलाया और अपनी साइड लेट गया। शर्मीन ने आमीन कहते वलीद की जानिब देखा, जो आंखें नीचे अपना सर खुद दबा रहा था। वो जाए नमाज तय करती उसके पास जा बैठी और उसका सर दबाने लगी। वलीद ने आंखें खोली से देखा और उसका हाथ धीरे से पीछे कर दिया। शर्मीन का दिल दुखा था। उसने फिर से उसके सर पर हाथ रखते दबाया तो फिर से वलीद ने हटा दिया, लेकिन नहीं झटक सका। वो रो रही थी। वो जानता था वलीद नाराज है मुझसे। वल आखिर वो पूछ बैठी, लेकिन वलीद खामोश रहा। शर्मीन ने आगे बढ़ते उसके सीने पर सर रखा और उसकी शर्ट मुट्ठी में दबाई शिद्दत से रो दी। वलीद उसे इस तरह रोता देखकर परेशान हुआ। यार, इस कदर रो क्यों रही हो? बस चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया। अल्लाह मेरी दोनों बहनों के नसीब अच्छे करेगा। वलीद ने उसे तसल्ली दी और उसके आंसू पूछे और मोहब्बत से कहा, आमीन। शर्मीन ने दिल से कहा तो वलीद ने उसे वापस अपने साथ लगाया। अब आंसू ना देखो मैं तुम्हारी आंखों में। उसने उसे वार्न किया, आप मुझसे खफा ना हो, बस मुझे हमेशा प्यार करते रहे, मैं कभी नहीं रहूंगी। वो सू करते हुए बोली, सोच लो फिर ना कहना। अली अब बस कर दे। वलीद ने उसे मायनी खीजी से कहते हुए छोड़ा। वो झीम गई और उसके गले से लगती उसके सीने में लपक गई। वलीद ने उसके माथे पर बोसा देते अपनी आंखें मीच ली थी। आज का दिन
असाब को बुरी तरह से तनाव दे गया था। अब थोड़ी देर दिमाग को रिलैक्स करना चाहता था। 2 दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। फिजा सारा जेवर इकट्ठा करके एक तरफ रखती, रोज उसे देखती थी। वो सारा जेवर अलमीर की अम्मी का खानदानी जेवर था, जो उन्होंने अलमीर की बीवी के लिए संभाल कर रखा था, पर अलमीर ने उससे निकाह नहीं किया। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी। दरवाजा खुला और शर्मीन अंदर दाखिल हुई। फिजा ने पलट कर शर्मीन को देखा। शर्मीन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। 2 दिन से दोनों के आपस में कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। शर्मीन का अंदाज बहुत खुरदरा सा हुआ था। फिजा खामोशी से पीछे हट गई। क्या कर रही थी? सरसरी अंदाज में पूछा। भाई, भाभी, आपके भाई ने मुझे ठुकरा दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? खुद से जब्त करते हुए पूछने लगी, जबकि आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। बहुत। शर्मीन ने उसकी बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया। फिजा ने हैरत से उन अल्फाज पर शर्मीन की जानिब देखा। वो क्या जताना चाह रही थी? ये अम्मी का जेवर है ना? शर्मीन ने उन 2 बॉक्सेस की तरफ देखते उन्हें खोला और सारा जेवर चेक किया। मैं यही लेने आई थी। अब निकाह तो कैंसिल हो गया, तो ये जेवर अम्मी को वापस करने हैं। धीमी मुस्कान के साथ कहती शर्मीन और बॉक्स उठाए बाहर निकलने लगी। भाभी, फिजा की पुकार पर वो रुकी। आपके भाई ने अचानक से निकाह से इनकार कर दिया। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? फिजा, अलमीर ने कब इनकार किया है? वो तो निकाह के लिए ही आया था। निकाह तो अम्मी ने इनकार किया ना? शर्मीन की बात पर फिजा के फिर से आंसू बहने लगे। आप उन्हें मना लेती ना? मनाना इतना आसान था क्या? तुम्हारे सामने उस दिन क्या कुछ नहीं हुआ। खैर, अब वक्त गुजर गया। शुक्र है खानदान वालों को शामिल नहीं किया तुम इस निकाह में, वरना कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती। मुंह बना के वो बोलती बाहर निकल गई, जबकि फिजा बेजो ताप खा के रह गई थी। अलमीर के इन दिनों फाइनल्स पेपर चल रहे थे, इसलिए वो सब कुछ भुलाकर अपने पेपर्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। पेपर्स के दौरान उसकी एक लड़की मोना से मुलाकात हुई। वो बीसीएस के पेपर दे रही थी और अलमीर पर दिलो जान से फिदा थी। सब पेपर्स के दौरान उसने अलमीर को बहुत तंग किया, लेकिन अलमीर अपने रूड रवैये की वजह से उससे दूर ही रहा। आज लास्ट पेपर था और वो उससे आज अपने दिल की बात करने आई थी। मोना, प्लीज जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बहुत जरूरी काम है, से जाना है। अलमीर ने माथे पर बल डाले हुए कहा, जबकि नजरें मोबाइल स्क्रीन पर फोकस थी। अलमीर, मुझे तुम बहुत पसंद हो, शादी करना चाहती हूँ तुमसे। मुझसे बहुत उम्मीद से देखते हुए बोली। अलमीर ने एक निगाह उस पर डाली। ये पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। अलमीर ने सख्ती से कहते कदम आगे बढ़ाए। अलमीर, सुनो, क्या कमी है मुझ में जो तुम इनकारी हो रहे हो? वो रो देने को थी। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मोहब्बत ना हो, लेकिन खुद ब खुद हो गई। अब दिल ने सुना ही नहीं। वो बेबसी से बोली, मुझे नहीं पता कौन सा कमजोर लम्हा था जिसमें मैंने तुम्हारे साथ नरमी से बात की और तुम्हें इतनी शह मिल गई कि तुम आज इस मुकाम तक पहुंच गई। अलमीर को अफसोस हुआ तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। मोना का दिल बहुत सख्त दुख रहा था। एंगेज्ड हूँ। अलमीर की बात पर मोना की आंखों से आंसू बह निकले। वो बहुत खूबसूरत है क्या? हसरत से पूछा। मालूम नहीं, लेकिन मेरी अम्मी की पसंद है। अलमीर ने साफ लफ्जों में उसे जवाब दिया और गाड़ी की जाने पड़ गया। मोना अपने आंसू पूछती उसके पीछे लग गई। अच्छा सुनो, आज हमारा लास्ट पेपर था, तो न जाने फिर कब मुलाकात हो, वो भी ना हो। एक आखिरी बार कुछ पल दोगे मुझे अपने? वो बहुत मतानत से बोली। क्या मतलब? अलमीर के माथे पर बल पड़े। कॉफी, कॉफी पियेंगे मेरे साथ लास्ट टाइम, फिर कभी कुछ नहीं कहेंगे। मोना, ना कभी मिलेगी। अलमीर जबड़े भींचे उसे देखने लगा। प्लीज, आपको अपनी की कसम। अलमीर उसकी बात पर से घूरता गाड़ी में बैठते को बोलता। खुद ही बैठा। मोना की तो जैसे ईद हो गई थी। वो करीब ही किसी कॉफी शॉप पर से ले आया था। कॉफी का ऑर्डर देते वो भी एक टेबल पर बैठे थे। आपके घर में सिर्फ आपकी अम्मी है क्या, और कोई नहीं है क्या? मीना ने थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए बहुत प्यार भरी निगाह उस पर डाली। मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करता किसी से। अलमीर ने संजीदगी से जवाब दिया। तो पीछे होकर बैठी। ये तो बता दिया कि लाइफ में कोई है। क्या ये पर्सनल बात नहीं थी? मोना ने भी उसकी बात पर संजीदगी से पूछा। कभी ना बताता, लेकिन तुम्हें खुशफहमी से निकालना भी तो था ना। अलमीर की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मोना के दिल पर लग रही थी। काफी सरू हैं आप, अलमीर। कॉफी का सब लिए तो सामने नजर उठी कि वापस भटकना भूल गई थी। वो वही थी। उसे कैसे भूल सकता था वो, लेकिन किसी और लड़के के साथ। किसी और को पसंद करती है तो क्या एक ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे जो ऑलरेडी किसी और को चाहती है? शर्मीन की बात उसके कानों में गूंजी। काफी मजीद कड़वी लगने लगी। अपने ग्लासेस पहनता, वो अपनी आंखों की चुभन को खुद से बचाने लगा। शायद अपने दिल का हाल छुपाने लगा।
कि कोई उसकी आंखों का दिल का राज न पढ़ ले। अपनी जगह से वो गुस्सा से उठी थी कि उस शख्स ने दुआ का हाथ थामा। अलमीर की पकड़ कॉफी के मग पर सख्त हुई, आंखों में चिंगारियां सी बढ़ने लगी। दुआ ने झटके से अपना हाथ छोड़ा और गुस्सा से उंगली उठाए से वार्न करती एग्जिस्ट की जाने पड़ी थी। वो शख्स भी उसके पीछे बाहर लगा और दोबारा उसका रास्ता रोका। यही है, अलमीर की बस हुई। वो अपनी जगह से एकदम कॉफी का मग हाथ में लिए उठा था और सीधा उनके पास आते उस शख्स के चेहरे पर उछाली थी। दुआ और वाजिद दोनों ही अपनी जगह साकित रह गए। गरम गरम कॉफी उसके चेहरे और शर्ट पर गिरी थी। अलमीर उससे ना रुका था। उसने जोर से वाजिद के पीछे की जानिब पुश किया। मोना अपनी जगह पे खड़ी ये सब तमाशा देखने लगी। दुआ ने अलमीर की जानिब सहम कर देखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, अलमीर ने वहां खड़े वेटर को अपना बिल थमाया और पलटकर दुआ की कलाई थामे वहां से निकलता चला गया। वाजिद तो सिचुएशन ही समझ ना पाया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। मोना वही खाली हाथ दिल रह गई थी। बाहर आते अलमीर ने दुआ को गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को रोड पर डाल दिया। दुआ ने लबनीचों से देखा। अब मुझे ऐसे कौन था वो शख्स? रणवीर ने तेज लहजे में उसकी बात काटते हुए पूछा। आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। दुआ ने जवाबन तड़क कर कहा। रणवीर ने गुस्से से गाड़ी स्पीड दी थी। क्या कर रहे हैं मीर, आहिस्ता चलाए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। वो घबरा कर बोली। वो शख्स तुम्हारा हाथ थाम रहा था और तुम्हें लगता है कि मैं वो सब देखना चुप रहूंगा? रणवीर गुस्से से फनकार। आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? सिर्फ हाथ पकड़ा था उसने और मैंने फौरन छुड़ा भी लिया। दुआ ने सफाई पेश की। रणवीर ने झटके से गाड़ी रोकी और उसके सर के पीछे हाथ रखे उसका चेहरा अपने करीब किया। कोई तुम्हें छुए तो बहुत दर्द होता है दुआ। जी चाहता है कि इसको हाथ तोड़ दूं, और आज ऐसा मैं कर भी गुजरता, लेकिन नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? उसकी आंखों में झांकते हुए हो रहा है, क्योंकि उसको यहाँ तक पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है। तुमने उसे इतनी हिम्मत दी कि आज वो तुम्हारा हाथ थाम गया, वरना किसी नामहरम की इतनी जरूरत नहीं कि वो यूं किसी लड़की को छू सके। झटके से उसे छोड़ते अपने बालों में हाथ फेरता वो आंखें मीच की। आपने भी तो मेरा हाथ थामा। दुआ ने उसे झट देखते हुए धीमे लहजे में बोला और सीट के साथ सर टिकाए गहरे निगाह से उसे देखा। थाम लूंगा एक दिन। गाड़ी स्टार्ट करते हुए भी अपना गुस्सा सब कर गया। क्या मतलब? हमारा रिश्ता खत्म हो गया तो फिर? दुआ को हैरत हुई। क्या फिर? हमारा रिश्ता आज भी जुड़ा है दुआ। अगर किसी और के साथ ताल्लुक जुड़ जाता तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन मेरी माँ की मर्जी थी कि उनकी बहू तुम ही बनोगी, और बहुत जल्द। उनकी ये ख्वाहिश उनका बेटा पूरी करेगा। घर आ गए हैं, जाओ अंदर, और आइंदा तुम्हें अकेले बाहर ना देखो, वरना। उसे रसानियत से बोलता, आखिर में धमकी देके, वरना क्या? दुआ के माथे पर बल पड़े। वरना किसी का भी लिहाज किए बिना उठा कर ले जाऊंगा, और निकाह के बाद सीधा कमरे में, फिर तुम चीखती चिल्लाती रहना। लेकिन ये कंगला फिर तुम्हें कंगाल करके ही छोड़ेगा। मायनी खजे से एक एक लफ्ज चबा कर कहता दुआ के 14 तक रोशन कर गया था। दुआ फौरन गाड़ी से नीचे उतरती, अंदर की जाने पड़ गई, और शोमे किस्मत उसे अलमीर की गाड़ी से उतरते फिजा ने देख लिया था। उसके तन बदन में आग लग गई। तुम जैसी बेहिया लड़की मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। दुआ के अंदर आते उस पर वो चढ़ दुआ के जो कि अलमीर के लफ्जों पर गौर कर रही थी। फिजा की इस कदर बदतमीजी करने पर उसे सख्त गुस्से से देखा कि किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? भूल गई बड़ी बहन हो तुम्हारी। रहने दे, बड़ी बहन। बड़ी बहन क्या आप जैसी होती है? फिर अलमीर को रस्ते से इनकार किया रिश्ते से, और फिर आप जब हमारा निकाह नहीं हो सकता तो फिर से अपने जाल में फंसाने लगी उन्हें। कितनी घटिया है आप। फिजा, जुबान को लगाम दो। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुआ का उसका अंदाज बुरी तरह चुभ रहा था। आप मुझे और मेरे अंदाज को छोड़े, ये बताया जिसकी खातिर अलमीर को छोड़ा था, जिससे मोहब्बत के दावे किए थे, वो शख्स कहाँ है? आया क्यों नहीं रिश्ता लेकर? फिजा तो जैसे आज फट पड़ी थी। शोर सुनती फरीदा बेगम और शर्मीन भी बाहर आ गई थी। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। दुआ ने से झिड़क थी। क्यों जरूरत नहीं फिजा? फिजा, ये सब क्या हो रहा है? किस बात पर बहस हो रही है? फरीदा बेगम ने बाहर आते हुए पूछा। अच्छा वो अम्मी आप आ गई। देख ले अपनी बेटी के गुल। तलवीर से रिश्ता ना करने के बाद भी उसके साथ राब्ते में है। अब माने ना माने, इन्होंने मेरे निकाह में रुकना डाला था। दोबारा से अलमीर को अपनी मोहब्बत के झांसे में, अम्मी इसे कहें कि चुप हो जाए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरी छोटी बहन है। दुआ ने अपना गुस्सा जब्त करते वहां से कहा, तो मत रखे याद, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसी बहन को डायन के साथ ताल्लुक रखने का। फिजा ने भी दो बदो जवाब दिया।
वो सब हैरानी से उसे देखने लगे। फीजा, क्या बोले जा रही हो? वो उसमें तो बड़ी है, बहन है वो तुम्हारी, रिश्तों का लिहाज रखो। फरीदा बेगम ने उसे झुकटा। अम्मी, आप जानती है ना कि इसकी शातिरबाजियों को, ये जितनी भोली मासूम बनने की एक्टिंग करती है इतनी ये चालाक है। अभी भी अलमीर की गाड़ी में आई है और उसे उतार कर गए हैं। पूछे इनसे कि क्यों गई थी अलमीर के साथ। फिजा की बात पर शर्मीन और फरीदा बेगम दोनों ने दुआ को हैरत से देखा। क्या ये सच है दुआ? फरीदा बेगम की आवाज ने दुआ ने अपने लब काटे। अम्मी, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि फिजा गलत बोल रही है। मेरा कोई रब्ता नहीं था अलमीर के साथ। दुआ गुस्से से कहती अपने कमरे की जानी पड़ी और दहाड़ से दरवाजा बंद कर गई। एक नंबर की झूठी लड़की। फिजा भी जुबान का जहर उगलती अंदर की जानी पड़ गई। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? फरीदा बेगम अफसरदा हुई। सब कुछ ठीक हो रहा है मेमानी जान, फिक्र न करें, मुतमईन रहे। शर्मीन ने मुस्कुरा कर ने हौसला दिया। क्या मसला है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मुसल वाजिद की कॉल पर बलाखिर दुआ ने कॉल रिसीव करते गुस्से से पूछा। तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? और वो शख्स, वो कौन था जिसने मेरे चेहरे पर कॉफी गिराई और तुम्हें ले गया? वाजिद गुस्से से फनकारा। दुआ के चेहरे पर मुस्कान सजी। मेरा होने वाला शौहर। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने कहा था कि तुमने इनकार कर दिया, फिर? वाजिद को कुछ समझ ना आ रही थी। हाँ, लेकिन मेरे इनकार की कोई वैल्यू नहीं है ना। वो मुझसे शादी करना चाहता है अब। दुआ ने अपने नेल्स देखते इतरा कर कहा। और मैं, मेरा क्या होगा? वो ख्यालों में गुम होता पूछने लगा। तुम तो इनकार कर चुके हो ना, फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? और तुमने खुद कहा था ना कि आज आखिरी बार मिल लो। और जो मैं हमदर्दी में आ गई और तुम मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। दुआ ने से आड़े हाथों लिया। हमदर्दी? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। हाँ, वैसा ही खोखला प्यार जैसा तुम करते थे। अब ये ड्रामा बंद करो। तुमने जो कुछ किया है ना, एक दिन सारा राज खुल जाना है। अब दोबारा मुझे कॉल की तो ब्लॉक कर दूंगी। उसे गुस्से से वार्न करते वो कॉल काट दी। क्या पड़ा मुझे धमकी देने में। वो मोबाइल बिस्तर पर उछालते बाथरूम में घुसी। क्या बात है अमीन, आज देर लगा दी बात? सुरैया बेगम ने उसका खाना लगाते पूछा। जी, आपकी होने वाली बहू मिल गई थी कहीं। खाने का नवाला तोड़कर मुंह में डालते हुए कहा। कौन? दुआ? वो कहाँ मिली? सुरैया बेगम उसके पास बैठती हुई खुशी से पूछने लगी। बस लिफ्ट दी थी घर तक। अलमी ने सारी बातें हजफ की और उन्हें बताया। कोई बात हुई थी तुम दोनों के दरमियान? अम्मी, आपको दुआ बहुत अच्छी लगती है। ऐसी भी क्या खास बात है इसमें जो फिजा में नहीं? अलबीर ने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे दुआ बहुत अजीज है और ये कुदरती बात है मीर, इसलिए मेरा इख्तियार नहीं है। खैर, मैंने कल बात की है भाई साहब से कि मुझे हमारी अमानत वापस लौटाए, वरना सारी जिंदगी के लिए नाता तोड़ दूंगी। तोड़ते हो बोली। अम्मी, ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? अलबीर ने नफी में सर हिलाते पूछा। तो कर सकती हूँ, मैं अपना हक ले रही हूँ। वो नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए बोली। आपको यकीन है कि आपके भाई साहब मान जाएंगे? अलवीर ने छोड़ा। इंशाल्लाह, बस देखते जाओ। सुरैया बेगम बहुत खुश थी। रणवीर बस माँ को देखकर ही खुश था। आप क्यों रो रही हैं इतना? वलीद ने फिजा को गले से लगाते हुए पूछा। उस वक्त रात के 10 बजे भाई के कमरे में बैठी दुखरा रो रही थी। शर्मीन भी पास बैठी उसका चेहरा देख रही थी। भाई, मैंने तो अब्बू की बात मानकर निकाह जोड़ा भी पहन लिया था। मैं तो फर्मा बरदार बेटी थी ना, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अरे जान, इसी में बेहतरी होगी। वलीद, इसे गुस्सा है कि आज दुआ अलमीर के साथ गाड़ी में बैठी घर आई। व्हाट? उसके साथ? अब क्यों वो उसके साथ है? शर्मीन की जानिब देखते वो गुस्से से बोला। मेरी मीर से बात हुई थी, उसने सिर्फ दुआ को लिफ्ट दी थी, लेकिन फिजा तो बात का पतंगर बना गई है। शर्मीन सर झटकते उठ गई। मेरा बच्चा, रोना नहीं, जाओ आराम करो, सुबह बात होगी। फिजा सो सो करती बाहर निकल गई। वलीद ने शर्मीन को बेड की दूसरी जानिब लेटता देखकर उसको खींच कर खुद से करीब किया। क्या? शर्मीन ने आईब्रो उचकाते पूछा। सो क्यों रही हो? तो रात हो गई है ना, रात को लोग सोते ही हैं। डियर हस्बैंड, शर्मीन ने अपनी मालूमात उसे दी। हाँ, वो तो सोते होंगे जो कवारे होते हैं। शादीशुदा लोग नहीं जागते, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वलीद ने खुमार आलूद लहजे में कहते शर्मीन की गर्दन पर लब रखे। उसका दिल धड़क रहा था। वलीद जब भी उसे छूता वो ऐसा ही महसूस होता था जैसे वो पहली बार छू रहा हो। वलीद, आज सो जाते हैं, कल कर लेना प्यार प्लीज। शर्मीन ने नींद से बोझल लहजे में कहा। वलीद एक नजर उसे देखता पीछे हट गया और अपनी जगह पर लेटते उसने करवट ली। शर्मीन का दिल किया कि धड़कन उथल पुथल हुई थी। वो नाराज होकर सो रहा था। शर्मीन से बर्दाश्त ना हुआ और करवट उसकी जानिब लेते उसकी कमर के पीछे से हक कर गया।
सो जाओ शर्मीन, नींद आ रही है। वलीद ने उसका हाथ पीछे किया, लेकिन मुझे अब नहीं आ रही। उसकी कमर पर से उंगलियां ट्रेसिंग करती धीरे से मैंने मनाई, लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे यार। वलीद अब सच में नाराज हो गया था। शर्मीन ने रुहासे होते उसके पुश्त को देखा और बिस्तर से उठ गई। लाइट ऑफ करते सोफे पर जा लेटी। उसका जाना वलीद ने नोट किया। शर्मीन, चुपचाप वापस आ जाओ वरना। वलीद ने धमकी दी, सो जाएं, आपको नींद आ रही है। वो रुख फेर गई। वलीद ने अगले ही पल उसकी जाने बढ़ते उसे बाहों में उठाया और सीधा बिस्तर पर लाते उसे अपने साथ सीने से लगाया। अब आवाज ना है तुम्हारी, सो जाओ चुप करके। वलीद ने उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आपको प्यार नहीं करना? उसके कान में धीरे से बोली, नहीं, कल कर लूंगा। और समझ गया था कि वो क्या पूछ रही है। नाराज तो हो गए है ना? शर्मीन की आवाज नम हुई, अरे नहीं हूँ, सो जाओ। वलीद ने उसके माथे पर बोसा दिया, फिर अभी करें? और बजिद हुई, शर्मीन क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, सो जाओ। वो हंस दिया, मुझे नहीं पता, अभी करें। उसके ऊपर आती उसकी शर्ट के बटन खोलते जिद्दी बोली, तो उसकी हरकत पर हंसता उसे नीचे करते उसके ऊपर आया, अभी अगले मिनट तुम चुप करके ना सोती दिखाई ना दी तो याद रखना, सारी रात मेरी शिद्दतों को सहना पड़ेगा और आंसू एक भी नहीं निकलने दूंगा, वरना तुम जानती हो। वो धीरे से सरगोशी करते उसके लबों पर झुकता उसकी सांसों में हलचल मचा गया। आपकी हूँ वलीद, जो चाहे कर लो। वो आंखें नीचे गहरी सांस लेती हुई बोली, जानता हूँ मेरी हूँ, इसलिए आज की रात छुट्टी दिया तुम्हें। वो एक तरफ लेटता उसका सर वापस अपने सीने पर रख गया था। शर्मीन के चेहरे पर एक मुस्कान सजे। वाकई वो खुद को खुशकिस्मत समझती थी कि उसका शौहर उसे ना सिर्फ प्यार करता था बल्कि उसकी केयर भी करता था। एक काम तुमसे ना हुआ, कैसे इंसान हो तुम, जस्ट गो टू हेल। फिजा ने गुस्से से काल काटी, अपने पीछे शर्मीन को खड़ा देखकर सटपटा गई। कौन सा काम होना कर सका, जरा मुझे भी बताना। शर्मीन सीने पर बाजू बांधे उसके पास आते हुए बोली, कोई भी नहीं। वो हकलाई, तुम्हें नहीं याद, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अपनी ही बहन को किसी गैर शख्स के हाथों उल्लू बनाया तुमने और ऐसा जाल बुना कि सभी उसमें फंस के रह गए। शर्मीन सख्त गुस्से से बोली, क्या बोल रहे हैं हम, होश में तो है? फिजा का लहजा डगमगाया, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। चलो चलो मेरे साथ शर्मीन। उसका हाथ थामे बाहर निकाल कर लाई, जहां इस वक्त सब मौजूद थे। शाम की चाय पी रहे थे। शर्मीन ने उसे झटके से छोड़ा। ये सब क्या है शर्मीन? वलीद को गुस्सा आया, तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? एक एक लफ्ज वो चबाकर बोलती सब परेशान कर रही थी। अम्मी, भाई, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही हैं। अंदर मुझे कह रही थी कि मेरे भाई के रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें बस इसीलिए प्यार के झूठे जाल में फंसाया है। एक बार दुआ तुम्हारे प्यार प्यार में फंस गई थी, तो खुद रिश्ते से इनकार कर देगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मीर मुझे मिल जाएगा, मेरा निकाह हो जाएगा। उसके बाद तुम बेशक उसे छोड़ देना, डोंट केयर। बस मेरे रास्ते का कांटा उसे हटा दो। जितना कहोगे उतनी रकम ट्रांसफर कर दूंगी। शर्मी ने अपने मोबाइल से वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते सबको सकते में डाल दिया। ये झूठ है भाभी, मुझे न जाने कौन से जन्म का बदला चिटा। कयूम साहब का हाथ उठा। पहली बार कयूम साहब ने अपनी लाड़ हाथ उठाया था, तो वहीं दुआ की आंखें आंसू से बढ़ गई। वो एक बार आसमान की जानिब देखा। आज उसे अल्लाह से बहुत प्यार आया था। तुम जैसी बेटी अल्लाह किसी दुश्मन को ना दे। वो बहुत बुरी तरह से टूटे थे मामू जान, प्लीज हौसला रखें। मैंने भी तो धोखा खाया था, लेकिन बर वक्त निकाह से पहले मुझे फिजा की हकीकत खुल गई थी और अम्मी से मैंने ही कहा था कि उस निकाह से इनकार कर दे। मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था, क्योंकि चाल इतनी बुरी खेली थी इसने कि हम सभी इसके जाल में फंस गए थे। शर्मीन ने अफसोस से फिजा की जानिब देखा, जिसका सर झुका हुआ था। ये लोग हकीकत में कितने चालाक होते हैं ना, किसी को अंदाजा भी नहीं होने देते। वाजिद फिजा का दोस्त था। दोनों की दोस्ती FB पर हुई थी और वो दुआ को नहीं फिजा को पसंद करता था, लेकिन फिजा को अलमीर चाहिए था, इसलिए उसे पैसों का लालच देकर दुआ के पीछे लगा दिया ताकि वो निकाह से इनकार कर दे। उसके बाद भले उसे छोड़ दे, और फिर वैसा ही हुआ। निकाह से इनकार पर फिजा को दुल्हन बनाया गया और वो बहुत खुश हुई। सब कुछ सीधा होता चला गया, लेकिन ऐन वक्त पर इनकार फिजा के असाब को झंझोड़ गया। उसने फिर से वाजिद से राब्ता किया और उससे कहा कि वो दुआ को दोबारा ट्रैप करे। उसके पास जितनी थोड़ी बहुत रकम थी, उसके अलावा सब अपनी अम्मी का छुपा जेवर बचा, और वाजिद को वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। और समझी कोई भी ये बात नहीं जानता है, लेकिन उसकी एक एक पल की वीडियो और फोटोज वाजिद ने लिए थे। और फिजा के पैसे न देने पर इनकार वाले दिन
सुबह ही किसी वक्त शर्मीन के नंबर पर हासिल करने के लिए सब कुछ शर्मीन के नंबर पर सेंड कर दिया था, और शर्मीन ने वो सब घर वालों को दिखाए। शर्मीन को उससे पहले ही तब शक हुआ था जब वो फोन पर किसी वाजिद से बात कर रही थी और ये वही नाम था जो दुआ ने लिया था। उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। इस सब के पीछे फिजा का हाथ है। दुआ अपने आंसू पूछती शर्मीन को देख रही थी। उसकी आंखों में तशक्कुर था। माना कि फिजा ने बहुत किया, लेकिन दुआ का अमल उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिजा गलत है तो दुआ भी गलत है। वलीद ने अपनी लाडली बहन को फिर से साइड लेना चाहिए। शर्मीन ने दुआ की तरफ देखा जो आंसू पूछते धीमा सा मुस्कुराई थी। उसी की साइड लेंगे क्योंकि वो उनकी लाडली बहन है और मैं तो कुछ भी नहीं। दुआ रो दी, भाई ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भाभी मुझे फंसा रही है कि मैं हट जाऊं और वो दुआ को फिर से भाभी बना ले। फिजा ने एक और तीर फेंका। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मेरी महफिल में वो अलमीर मेरी बहन को दुल्हन बनाकर छोड़ गया। मैं अब उसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। वो बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता। वलीद की अपनी ही मंतिक थी। ये आपकी भूल है वलीद कयूं। शर्मीन का लहजा इंतहाई संजीदा था। मैं सबकी तरफ फिर से मुतवज्जा हुए। दुआ अब भी अलमीर की मंगेतर है और ये ताल्लुक बचपन का जुड़ा है, और ना सिर्फ बचपन का बल्कि दिल का भी है। शर्मीन ने दुआ के कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे खुद बोलकर सब बता दे, लेकिन वो आज पहली बार हौसला हार रही थी। इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे भाई को अपनी बहन वलीद वलीद अचानक से सुरैया बेगम और अलमीर की आमद सभी चौंके। आज कितने दिनों बाद बहन भाई के घर आई थी। कयूम साहब की आंखें भर आई। फौरन को बहन से गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वलीद की हिम्मत ना हो सकी कि कुछ कहे। भाई मुझे मेरी दुआ वापस चाहिए और आज मैं इनकार नहीं सुनूंगी। मैं बहुत मान से वो बोली। कयूम साहब ने बहन के सर पर शफकत से हाथ रखा और बेटे की जानिब देखा। वलीद, निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करो। दुआ और अलमीर का निकाह आज ही होगा। वह सख्त और पुख्ता लहजे में बोली। शर्मीन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब्बू, लेकिन क्या वलीद? कयूम साहब ने अपनी बात काटी उसकी। जैसे तुम्हें अपनी एक बहन अजीज है ना, वैसे मुझे अपनी बहन दिलो जान से अजीज है। बस फर्क यह है कि मेरी एक ही बहन है। अगर मेरी 10 बहनें भी होती तो सबसे एक जैसा ही प्यार करती, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इस मामले से भी पूछा होगा। अपना फर्ज हर तरह से पूरा अदा करना चाहिए, और अब एक फर्ज अदा करो, अपनी बहन के निकाह का। भैया, मुझे रुखसती भी आज चाहिए। मैं नहीं चाहती कि निकाह के बाद अपनी बहू को मैं यहाँ छोड़ू और मजीद कोई बदमज़गी पैदा हो। बाकी इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम शानदार सा वलीमा भी देंगे। क्यों इल्मी? सुरैया ने अपने बेटे की जानिब देखते हुए पूछा। जैसा आप कहें अम्मी, वैसा ही होगा। अमीर ने उनके हाथ चूमते और कयूम साहब को गले लगाया। उन्होंने भी फराख दिली का मुजाहरा करते अलमीर को सीने से लगाया। उन्होंने अलमीर से शुरू से बहुत पसंद की थी, इसलिए उसको माफ करने में देर नहीं लगाई। और फिर वलीद बाप के सामने खामोश हो गया था। निकाह के ख्वाह के आने के लिए कुछ देर वक्त बाकी था और निकाह की सुन्नत अदा हुई। और वो गोल्ड सेट जो दुआ अपनी गर्दन पर लगा कर देख रही थी, आज उसे तैयार करते शर्मीन ने ही सेट पहनाया था। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह तुम्हें अपनों में छुपे, दुश्मनों के शर से बचा रखे। आमीन। शर्मीन ने निकाह के बाद दुआ को गले से लगाया, दुआ दी। दुआ सबसे मिलती दुआ लेती भाई के पास आई और खड़ी हो गई। क्या आज भी सीने से नहीं लगाएंगे आप? वो हसरत से बोली। जिस तरह वो फिजा से प्यार करता था वैसा प्यार कभी वो दुआ से कर ही ना पाया, लेकिन आज उसको सीने से लगा लिया था। फिजा की सारी चालें, उसका बिछाया गया जाल, सब सूझ साबित हुआ। जो जिसका नसीब होता है उसे मिलकर ही रहता है, क्योंकि नसीब तो अल्लाह जोड़ता है ना। सबकी दुआओं में वो बहुत सादगी से रुखसत हो गई थी, जबकि फिजा से उसके माँ बाप ने बातचीत तो दूर देखना भी गवारा ना किया था। सही कहते हैं लोग, जब जख्म से खून नहीं निकलता वो अक्सर अपनों का ही दिया होता है। दुआ रुखसी के वक्त फिजा से नहीं मिली थी। फिजा अपने कमरे में आते पूट पूट कर रो पड़ी थी। कितनी चालें चली, लेकिन बलाखिर कुछ किए वो दुआ अपने नसीब में वापस ले गई थी, और फिजा आज भी खाली हाथ रह गई थी। अलमीर जैसे ही कमरे में आया तो दुआ खिड़की के पास खड़ी थी। पलट कर एक नजर अलमीर को देखा, जिसकी आंखों की जूत मजीद चल उठी थी। अलमीर उसके पास जाते उसके पीछे खड़ा होता, सामने चौदवी के चांद को देखने लगा। चांद चौदवी का हो या हलाल का, लेकिन उसमें दाग होता है ना। उसकी बहुत गहरी बात पर दुआ का पूरा वजूद लर्ज उठा। झट से सर उठाकर उसे देखा। मुझे दाग कह रहे हैं? मैं पाक हूँ। वो अपनी सफाई देते मन ही मन में रोई। अमीर अलमीर मस्खराना अंदाज में मुस्कुराया। आंखें देखा निगला नहीं जाता मिसेस दुआ। बस जब यकीन नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की फिर? दुआ तड़प कर बोली।
امی کی وجہ سے۔ المیر نے بنا رکے بے لچک انداز میں جواب دیا، آپ نے بہت غلط کیا۔ اگر آپ کو اس چاند میں داغ دکھائی دے رہا تھا تو آپ کو فضا کو اپنانا چاہیے تھا جو بالکل پاک ہے۔ وہ غصہ سے تڑ یو نو تم دونوں بہنیں ایک جیسی ہو، دونوں نے مل کر مجھے ٹریپ کیا، اس نے اپنے جیسے اچھے پن کے جال میں الجھا کر، اور تم نے اپنی محبت کے جال میں۔ اسے اپنی طرف کھینچتا تو دعا سیدھا اس کے سینے جیسا ٹکرائی۔ چھوڑے مجھے۔ اسے غصے سے پیچھے ہٹنا چاہا، مجھے نہیں ہٹنا، آج سواگ رات ہے تو سپوائل نہیں کرنا چاہتا یہ مومنٹ۔ اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے چھونے والے پہلے مرد ہیں؟ دعا۔ المیر کے ہاتھ اس کی گردن پر جاٹھے، کوئی بھی فضول بکواس کی نا تو جان لے لوں گا میں تمہاری، تم صرف میری ہو۔ میرے الفاظ یاد نہیں ہے کیا؟ اسے پکڑ کر خود سے بے حد قریب کرتا اپنے گرم سانسیں اس پر چھوڑنے لگا اور بھڑکا، آپ مجھ پہ شک؟ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ المیر نے آگے ہوتے چھوٹی سی گستاخی کی اس کے لبوں پہ اور اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ نہیں کر رہا شکیلا، میں کر بھی نہیں سکتا۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن دل نہیں۔ اسے خود سے لپٹائے بستر تک آئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہا تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ وہ دھڑکتے المیر مسکرا دیا، دھیرے سے لائٹ آف کرتا اس کا زیور اتارتے ایک طرف رکھا۔ میں اگر کہوں کہ تم سا ہنسی کائنات میں نہیں، کہیں تعریف بھی ہو تو تم کیا یقین کرو گی؟ المیر نے اس کا سر تکیے پر رکھا تو اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس پر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا، اور دعا کو بچپن سے وہ جانتا تھا، تو اس کے دل میں وہی تھی، اور یہ بھی اسے پتا تھا کہ اس نے واجد والا ڈرامہ کیوں کیا۔ وہ یہ نہیں جان پایا تھا، شاید کسی کا برم رکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ واقعی برم رکھ رہی تھی، نصیبوں کا کھیل کھیلنے میں بہن کا ساتھ دیا، جبکہ اسے پتا چلا کہ فضا المیر پسند ہے۔ اس کے لیے اس نے واجد نامی لڑکے کو اسے ٹریپ کرنے کو کہا، تو اس دن بہت روئی اور پھر اپنی بہن کی خاطر ٹریپ ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ اس کو اس کا پیار مل جائے، اور وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن نصیب تو اوپر والا چھوڑتا ہے نا، اس نے دعا اور المیر کا نصیب ایک دوسرے سے جوڑا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتنا ہی جال بچھائے، چال بنتا رہے، ملنے والے کو وہی مل جاتا ہے جو نصیب میں ہو۔ نہیں کرنی بات۔ شرمین نے ولید کا ہاتھ تھاما جو اسے کمرے میں بے ظاہر جانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ بس سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خفا سا ہوا، سوری۔ شرمین نے کانوں کا ہاتھ لگا، آپ اب ایسے نہیں کر سکتے ولید، 3 دن سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، پیار نہیں کر رہے۔ مجھے آج پیار کرنا ہے آپ سے، کیونکہ اب پھر تم سے پیار آ رہا ہے نا، بے حد اور بے حساب آ رہا ہے۔ شرمین گنگنائی تو المیر کے ہونٹوں کو مسکان نے چھوا اور کھینچ کر اپنی بیوی کو اپنے سینے میں بھیجا۔ آج پیار کی ایسی بارش کروں گا کہ آندھی طوفان کے ساتھ بجلی بھی کڑکے گی۔ ہمائنی خیزی سے بولا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ نہیں جان، میں نہیں چاہتا کہ میرا سالہ مجھ سے آگے نکل جائے، مجھے اس سے پہلے بابا بننا ہے، اور نہ وہ مجھے چرانے سے باز نہیں آئے گا۔ ولید اور المیر کی آپس میں دوستی بھی بہت گہری تھی اور محبت بھی۔ اس کے جواب پر شرمین کھلکھلا کر ہنس دی، اور اس کے لبوں سے مسکراہٹ کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بدہوش ہوتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ کچھ پردے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دعا چاہتی تو سب کے سامنے پردہ فاش کر سکتی تھی کہ واجد کا سچ پہلے سے جانتی تھی، صرف فضا کی خاطر وہ جان بوجھ کر ٹریپ ہوئی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بہن کا پردہ رکھ رہی تھی، اپنی زبان سے اسے کچھ نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کبھی کسی مسلمان کا پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔